role and what is a negative role. Okay, let's see. The mass media include TV, radio, newspaper, magazine, outdoor hoardings, cinema, social media network, etc. That means कि what mass media include और indoor and advertising. That means कि television, newspaper जो भी आप देख रहे हो या आप बाहर जा रहे हो तो भी आप hoardings देख रहे हो जो भी है हर चीज that is called come under the mass media. Now portrayal के किस तरह से पेश किया है mass media ने. Let's see the positive role. Okay, highlight women related problem. The mass media such as TV and newspaper and programs highlight the problem faced by the women folk in India. Violence against women related incidents are highlighted in media. This catches the attention of the police, judiciary, etc. That means कि बहुत सी जगह पे with the help of the TV program, with the help of the reality shows और with the help of the serials, women's का जो है जो भी problems है women's के वो लोगों के सामने लाए हैं, पुलिस के सामने लाए हैं. ओके, जिसके वजह से जो है लोगों को पता चला है कि विमेंस के क्या है. वहाँ पे पर स्टार्ट लाइन देखो. फॉर इंस्टेंस अ मुंबई बेस्ड जज that is to a lady judge give a light punishment to a rapist. The media, especially the newspaper, disannounced the judgment and lady judge was subsequently transferred. That means एक केस था, एक रेपिस्ट के खिलाफ वो रेस था, तो जो जज थी वो लेडी थी, उसने वो रेपिस्ट को जो है वो लाइट पनिशमेंट दी, मतलब ज्यादा इतनी सीवियर पनिशमेंट नहीं दी. बट जब मीडिया के सामने ये रोल आया तो मीडिया ने उसको डिपिक्ट किया कि इतना लाइट पनिशमेंट क्यों मिला. तो उसके बाद वो जो लेडी जज थी उसका ट्रांसफर हो गया. तो मीडिया आल्सो रिपोर्ट द ऑटो प्रोटेस्ट अगेंस्ट वुमेन which awaken the police and government to take the suitable action against the culprits. Sometimes it happens कि women's के साथ कुछ crime होते हैं but women's बाहर आके अपने अपने जो भी प्रॉब्लम होती है उनको वो बताती नहीं है. तो यस बोलो बोलो जल्दी. मेरी फ्रेंड वेटिंग रूम में है. हाँ, it's 8:40. So it's that time. See, please. Next, social support to the women. The mass media provides social and moral support to the women in India. The mass media makes women aware of their constitutional right to the editorial. Okay, there are certain a group of the people who are unaware of their rights. उनको उनके rights के बारे में पता ही नहीं है. तो जो social group होती है, जो NGOs होता है, जो women supporting चीजें होती है, वो लोग जो है हेल्प करते हैं इसको विमेंस को. जैसे कंसर्न फॉर द गर्ल चाइल्ड, मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया यूनिट 1 में, देयर इज अ जनरल डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री. तो वो पता चलता है कि गर्ल्स का चाइल्ड के लिए क्या क्या एंटी डाउरी कैंपेन. दैट मीन्स कि अगर कोई किसी को डाउरी के लिए सता रहा है तो मैटरनल इन द चाइल्ड केयर कैंपेन हमने देखा है कि बहुत सारी डेथ हो जाती है बिकॉज प्रॉपर केयर नहीं मिलता है. तो ये सारी चीजें जो है वो मीडिया हेल्प करती है. I'm not going to take any person now. Okay, it's 8:40 now. Women's status in society. The mass media may try to improve the women's status in the society. Stories of the successful women like the Kiran Bedi, जो former IPS officers थी, Kiran Majumdar Shaw, जो industrialist है, Mrs. Indira Gandhi, ex prime minister जो थी हमारी country की पहली, Mother Teresa, social worker, सानिया नेहवाल, स्पोर्ट्स पर्सन. ये सब वो विमेन से जिन लोगों ने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है और ये विमेन्स होने के बावजूद भी कंट्री के हाई पोजीशंस पे रही है. तो ये इन सब की स्टोरीज बता के जो है वो सोसाइटी को मोटिवेट करते हैं कि एनकरेज विमेन्स. ओके, पेरेंट्स शुड एनकरेज विमेन, पेरेंट्स शुड गिव मोटिवेशन टू द विमेन्स, टू द डॉटर के वो अपने आप को चाहे बाहर आए काम करे. विमेन एम्पावरमेंट. Media boost morale of the women and make them fight against the injustice and the social evils. When women are encouraged by the media, they raise against the bad practices. That means in certain places there is a women empowerment और मीडिया उनको अनकरेज करता है कि वो बुराई अगर कुछ हो तो वो जो है उसके खिलाफ लड़े और मीडिया फिर उनका साथ भी देता है. तो ये एनकरेज करता है विमेन्स को ताकि विमेन्स जो है आगे बढ़े. तो दिस आर ऑल पॉजिटिव रोल ऑफ द mass media. Now let's see the negative role. Okay, see as there is a pros and cons in every coin. Same way, if there is a positive thing, negative thing also. Let's see the negative. Depict women in the poor taste. Mass media depict the women in the poor taste. That means, for instance, mass media depict women in some advertisement by unethical advertisers. This can be advertised effect on the male as well as young women.
Okay, that means as I told you, okay, whether every advertisement you can see the female, whether that advertisement need female or not. For example, a product like the shaving cream, which is totally a man dominant product, ऐसे product में भी आपको female दिखाई देंगी. And females, especially the advertisement, X effect के नाम का एक perfume था, आपने देखा होगा X effect. Yes, student, Yes, X ma'am. effect. So उसमें भी आपने देखा है कि person spray the Yes. perfume and all the women are behind him. Okay, that means this is very irritating. Okay, once तो ये सारी चीजें जो है, young models are shown in a certain age with sanity. That means models को दिखाया जाता है, उनके clothes बहुत vulgar होते हैं, उनकी जो pose होते हैं वो vulgar होते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारे autographs होते हैं. Okay, that means कि वो female जो है, वहाँ पे फीमेल को जो है ऐसा एम्पावर यूज नहीं किया जा रहा है, जस्ट फीमेल्स को उनकी ब्यूटी के लिए यूज किया जा रहा है. Next point, dramatize women-related violence program. A good number of the TV program and serials depict women. This is, for example, अभी जितने भी serials है, that is totally women. उसमें दिखाया गया कि women जो है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स होती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, abduction होता है, रेप होता है, डेल टू वो जो है वो चुप रहती है. ओके, तो ये ड्रामेटाइजेशन या सीरियल्स का भी जो है वो गलत इम्पैक्ट है women's के ऊपर. थर्ड पॉइंट, पब्लिकाइज डेकोरेटिव रिमार्क्स अगेंस्ट women's. पब्लिक में जो है वो women's के ऊपर कमेंट किए जाते हैं, जो ईव टीजिंग होते हैं, जैसे कुछ लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कमेंट्स करते हैं women's के ऊपर, उनके लुक के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, या फिर उनके कोई चीज के ऊपर. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. फॉर इंस्टेंस इन सितंबर 2018 वन पॉलिटिशियन में 2018 में एक पॉलिटिशियन ने रिमार्क दिया था. देखो वो क्या रिमार्क है. सर, I proposed to her but she rejected me. Please help. I will help for sure. First come to me with your parent. If you say yes. Okay, एक एग्जांपल है जहाँ पे वो पर्सन ने क्या बोल रहा है, देखो कि मैंने उसको प्रपोज किया था. सर, I proposed to her. She rejected me. Please help. I will help for sure. First come to me with your parent. If they say yes, we also like the girl, then we'll do. I will kidnap the girl and hand over the girl to you for the marriage. Okay, that means कि यहाँ पे सी वो पर्सन का नाम भी दिया है एमएलए का, that is राम कदम, बीजेपी का एमएलए है फ्रॉम घाट का ऊपर. एक पर्सन उसको बोल रहा है कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया है और मुझे उससे शादी करनी है. तो वो पर्सन बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, मैं वो लड़की को तुझे हैंड ओवर कर दूंगा, तो उससे शादी करना. दिस इज वेरी इरिटेटिंग कमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस. ओके, तो ये सारे कमेंट्स है. ऑल्दो द वीडियो क्लिप्स, ये एक एसेंशियल इशू था उस टाइम 2018 में. एंड देन दिस इज नॉट राइट. ओके, मैरिज किसी को प्रपोज कर रहे हो, डेट मीन्स कि वो हाँ बोले या ना बोले, डेट इज टोटली पर्सन की चॉइस है. आप किसी से फोर्सफुली यस या नो करके उससे मैरिज नहीं कर सकते. तो दिस इज ऑल जो है विमेंस के खिलाफ जो नेगेटिव रोल है मीडिया का. एक्चुअली दिस इज नॉट मीडिया, मीडिया का रोल नहीं है ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया था, हेल्प किया था एक्चुअली वो पर्सन को. Social economic problem of women in India. What are the socially and economically problem women face in India? Although a number of legislation has been enacted to protect the interests of the women, despite constitutional safeguard, yet women is disadvantaged a lot, as face a lot of number. That means in spite of taking lots of steps to empower the women, okay, to uplift the women, there is a very constitutional right to safeguard the women, even though even is facing many social problem and economical problem. Let's see the problem one by one. The first problem is low status of women. The women in India are still given the secondary status in most of the communities. The following instances indicate about poor status. That means even now in many communities, women's standard is very low. Ill treatment and malnutrition of the girl child. That means the women is not treated properly. Even the food that is given to the girl child is not, it has good, it is not nutritional balanced diet food. Practice of sati in the certain part of India, even though the sati practice is abolished by Raja Ram Mohan Roy, still in the several parts of the country, still the sati practice is going on. Abortion of the female fetus, this has told you, abortion of the girl child before born, restriction of the woman in the certain community. That means there are a lot of restriction on the women child. That women child cannot go out, women child cannot do this and that by certain communities. Permission to work in office by the parents or in-laws. That means some parents are very strict that their child or their daughter or their girl will not go to the work. And sometimes if the girl is working after marriage, the parents-in-laws are not allowing her to work. So these are the various restrictions by the various family.
Next point, the problem of illiteracy. Overall illiteracy rate has improved. Like for example, literacy हमारी country में increase हुई है. जो पहले जितने literate people थे अभी उतने literate नहीं है. But still now राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में हमारी country में अभी भी है जहाँ पे literacy improve हो रही है males में compared to the females. Okay? फीमेल्स में लिटरेसी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है. अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में ये है. यू कैन सी द स्क्रीन. The main causes of low literacy among the women is lack of consent for the girls. Therefore, is high drop out of the girls student at the primary and the secondary level. Some people don't allow their girl to go for the secondary and higher secondary education. The parents do not realize the importance of education for the child. Parents are thinking that education is only for the boys, not for the girls. The girls are brought up for mainly household. That means the girl सिर्फ घर के काम के लिए गर्ल्स है. जो बाहर का काम है या जो एजुकेशन है वो सिर्फ जो है वो बॉयज करेगा. ओके. थर्ड पॉइंट, violence against women. We have seen this violence in the last lectures, but let's see. First is a dowry problem. Despite the provision act of dowry act, that is में dowry act 1961 में dowry act को जो है वो किया है कि सिस्टम ऑफ डॉवरी इज वाइडली प्रैक्टिस है. इवन दो अभी भी बहुत सारे स्टेट्स है हमारी कंट्री में जहाँ पे डॉवरी सिस्टम इट्स क्वाइट एक्टिव. अभी भी वहाँ पे हरास किया जाता है और बहुत सारे ऐसे डॉवरी केसेस है जो पुलिस में रिपोर्ट्स नहीं किए जाते. ठीक है. रेप एंड द सेक्सुअल अब्यूज. अगेन द रेप इज अ क्राइम एंड द सेक्सुअल अब्यूज दैट मींस रिमार्क देना, जैसे मैंने अभी बोला मीडिया में भी है ये. और रेप इज अ हीनियस क्राइम. इट इज अ इंक्रीज. और हमारी कंट्री में रेप जो है दिन पर दिन इंक्रीज हो रहा है. यू कैन सी द थर्ड लाइन. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट a rape case is registered in India every 2 hours. Okay, that means every 2 hours there is a registration of rape case. Several cases are not reported, even though के बहुत सारे cases जो है report के rape के वो report भी नहीं होते हैं. So this is all violence against women. Apart from rape, women are sexually abused even by husband at time of women. That means कि women को abuse किया जाता है family members की तरफ से, उसके husband की तरफ से. Then there will be a wife beating जहाँ पे wife को मारा जाता है, उसका husband ही मारता है. It is not only happens in the lower class, but it is happen in the upper class, okay, and middle class also. Female fosticides. Again, we have seen female fosticides being, if the girls get pregnant, women get pregnant, तो उसका चेकअप किया जाता है. That means with the help of the various technique, and come to know whether the unborn child is male or female, and if the child is female, the child is aborted. So you can see here fifth point का second वाला paragraph देखो. An unbelievable but the true incident in Devda village in Rajasthan. The marriage of the young girl took place in 1998 for the first time in 110 years. This means no female child was born in that village for the 100 years. Okay, this is a true incidence कि वो एक देवदा विलेज है राजस्थान में जहाँ पे 100 years में कोई गर्ल चाइल्ड पैदा ही नहीं हुई. Okay, the second marriage of the young girl saw took place in February 2010. This means only 2 weddings of took place in Devda village of Rajasthan in past 120 years. ऐसा आपको लग रहा है फेरी टेल है, but this is reality. Last 120 years में अब तक वहाँ पे सिर्फ 2 ही शादियाँ हुई है. That means imagine कि वहाँ पे गर्ल चाइल्ड है ही नहीं. मतलब गर्ल चाइल्ड होती होगी, उनको बॉर्न ही नहीं किया दिया. Most of विडोज की जो कंडीशन है, जिनके हस्बैंड मर गए, उनकी भी कंडीशन हमारी कंट्री में बहुत खराब है. The widows face a number of problems in Indian society. At times they are abused by the other male in-laws. उनके in-laws जो है वो उनको अच्छा नहीं बोलते हैं. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है सोसाइटी में भी कि विडोज जो है ये रिचुअल अटेंड नहीं कर सकती. बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स है जिसमें विडोज को पार्टिसिपेट नहीं किया करने देते हैं. उनके क्लोथ्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि विडोज के नॉट वेयर दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स. विडोज जो है वो रीमैरी नहीं कर सकती है. ओके. प्रॉब्लम ऑफ द वर्क प्लेस. प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल लेवल पे भी नहीं है. वुमेन आर फेसिंग प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस ऑल्सो. ओके. वर्क प्लेस पे भी उनको हरास किया जाता है. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल सी सेक्सुअल हरासमेंट लाइक जो है is prevalent in almost all the sectors including the educational institution also. It's not that कि education institution है वहाँ पे women जो है वो safe है. Even हर जहाँ women काम करती है उनको exploit किया जाता है. या तो उनके ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं, उनके ऊपर, उनके अपीयर के ऊपर, उनके अटायर के ऊपर, उनके क्लोथ्स के ऊपर. ओके. नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी इन वेजेस. जो वेजेस मिलती है, जो सैलरीज मिलती है,
वो भी विमेन की अलग है और मेल की अलग है. दैट मीन्स इफ यू कंपेयर, तो विमेन्स को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन से कि इक्वल पे मिलना चाहिए विमेन को. इफ मैं अगर एक काम कर रही हूँ, जो मेरा कलीग है, सपोज आई एम फीमेल, मैं लेक्चर्स ले रही हूँ, मैं वो सारे काम कर रही हूँ जो मेरा कलीग कर रहा है, तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सैलरी. मुझे जितनी, उनको जितनी सैलरी मिली उतनी मुझे भी. बट इन रियलिटी सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन है. मेल्स आर गिवन द हाई सैलरी कंपेयर टू द फीमेल. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एडवांसमेंट. अगर कुछ आगे बढ़ने की भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पार्टिसिपेट करना है सेमिनार्स में या हायर लेवल के ऊपर, तो वहां पे भी मेल्स को जो है वो इम्पोर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू द फीमेल. Problem of the single parent family. The single parent family face a number of problem. Divorce rate is increase. Okay, हमारे कंट्री में जो है पहले डिवोर्स रेट इतना हाई नहीं था, वेस्टर्न कंट्रीज में था, लेकिन अब जो है वो हमारी कंट्री में भी डिवोर्स रेट है वो हाई. और सिंगल पेरेंट है, इधर मदर टेकिंग केयर ऑफ जो बच्चों को देती है, और इसके वजह से भी जो है वो भी प्रॉब्लम हो रही है. ओके, जो औरत डिवोर्स लेती है, जो डिवोर्सी होती है, वो उसकी खुद की फैमिली या उसके नेबर्स या उसके कलीग्स जो है वो विमेन को अच्छे अच्छा नहीं मानते कि ये डिवोर्सी है. लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स. अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो इंडियन पॉलिटिक्स में भी विमेन की पोजीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है. फीमेल्स जो है वो पॉलिटिक्स में तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेट करती ही नहीं है. एंड देन अगर सम आती भी है तो वो मोस्टली फैमिलीज की होती है. दैट मीन्स उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर या उनकी फैमिली ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, इसलिए वो विमेन्स जो है. आउटसाइड फैमिलीज आप बहुत कम देखोगे विमेन पॉलिटिक्स में. इनफैक्ट यू कैन सी द सेकंड पैराग्राफ, 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द पार्लियामेंट. इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है जो 1998 पे रखा गया था, पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट देयर शुड बी अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. इफ अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो बस में, तो आप देखते हो स्टार्टिंग में जो सीट्स होती है वो वुमेन के लिए रिजर्व होती है. इवन Yes, ma'am. ट्रेन्स में भी आप देखते हो कि लेडीज कंपार्टमेंट्स होते हैं, रिजर्वेशन होती है. दैट मीन्स नो मेल कैन एंटर इनटू दैट कंपार्टमेंट और नो मेल कैन सिट इन दैट सीट. सेम विद देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन. दैट मीन्स पर्टिकुलर सीट इज बिलोंग टू वुमेन ओनली. कोई भी मेल जो है वो वहां पे जो है इलेक्शन लड़ नहीं सकता. इवन दो आप देखोगे तो आप देखोगे कि इट्स हार्डली वुमेन पार्टिसिपेट इन द politics. So these are the various social. Let's see solution to social economic problem. We have seen women facing lot of problem. There is a social problem, economic problem. Let's see कि government ने क्या steps लिए to solve the problem, to overcome the problem faced by the women in the Indian society. There is a need to take the appropriate measures. बहुत सारे measures लेने हैं, not only by the government but also the society. क्या है? एजुकेशन ऑफ द वुमेन. सी एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एजुकेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करता है लाइफ के हर चैलेंजेस फेस करने के लिए. जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो बिकॉज यू आर एजुकेटेड. द गवर्नमेंट शुड गिव प्रायोरिटी टू वुमेन एजुकेशन. दैट इसके लिए गवर्नमेंट ने 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन फ्री कर दिया है. ओके, फॉर अ गर्ल चाइल्ड 12th स्टैंडर्ड तक. अगर आपको जैसे डिग्री कॉलेज पढ़ना है, जैसे अभी बैफ में हो या बीएमएस में, तो अभी आपको फीस भरनी है. बट टिल 12th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा, ताकि आप अपने आप को एम्पावर कर सको, ताकि आप जो हो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर स्टूडेंट. At present, education for the girl is Yes, up to ma'am. free standard. In some states, girls' education is free. The state government should go a step further and make the education for the females up to graduation level. Apart from the free education, the government should also provide special incentives to. इसके अलावा सी जो है वो free pass भी मिलता है. I think रेलवे का भी free pass मिलता है, right? ट्रैवल करने के लिए. आई एम नॉट क्लियर, अगर आपको कुछ आइडिया है तो मुझे बताओ. देयर इज अ कंसेशन. बस में ट्रांसपोर्ट फ्री में कंसेशन मिलता है, रेलवे के लिए पास मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 12th स्टैंडर्ड. यस स्टूडेंट, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्स. Yes, ma'am. ओके, अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि सिर्फ इसके लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि ग्रेजुएशन लेवल तक, जैसे 12th स्टैंडर्ड तक जैसे फ्री एजुकेशन किया है ना, स्टेप शुड बी टेकन कि ग्रेजुएशन तक जो है वो विमेंस की, अगर किसी को ग्रेजुएशन तक भी जाना है, अगर किसी को ग्रेजुएट भी होना है तो भी जो है वो एजुकेशन ले सकता है. ओके, तो गवर्नमेंट को ये भी स्टेप लेने चाहिए कि नॉट ओनली अप टू 12th स्टैंडर्ड बल्कि आगे भी गवर्नमेंट को, और इसके अलावा और भी इंसेंटिव्स देना चाहिए ताकि मोर एंड मोर वुमेन जो है. सो वी हैव सीन कि व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट वुमेन्स आर फेसिंग इन आवर सोसाइटी. There are many numbers of the problem and numbers of the problem government is facing. So there should be in order to overcome the problem, the agencies, the government should take a role
we have seen the first point, the education to the women. See, education is very important. Okay, education prepares you to face up the challenges. And right now up to 12th standard जो है वो free education है. तो आगे भी स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को ग्रेजुएशन लेवल तक. दैट मींस कि गर्ल वांट टू परस्यू द करियर और उसको ग्रेजुएट होना है. एंड दैट टाइम आल्सो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट. अप टिल नाउ इट इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर.